And we're getting these latest pictures from Prayagraj. Atiq Ahmad's convoy is in Prayagraj. He will be produced in a court tomorrow. He is going to be lodged in Naini jail in Prayagraj. He was shifted from Sabarmati jail in Gujarat this afternoon. Republic team has been tracking every movement of this mafia don who is very much wanted in Uttar Pradesh. We will cut across to a battery of reporters from our sister channel Republic Bharat who have been trailing this convoy of Atiq Ahmad from Gujarat to Uttar Pradesh. Yeah. And we will have our reporters joining us in a short while from now, just letting our viewers know that Atiq Ahmad has been is going to be investigated in multiple cases in Uttar Pradesh. Former leader of the SP as well as the BSP, he was lodged in Sabarmati jail. We're getting this latest report. Let's listen in. काफिला आएगा देखिए बैरिकेड्स लगातार लगाए जा रहे हैं। कैसे मुस्तैदी बढ़ती नजर आ रही है ये देखिए आप, क्योंकि अब समय खत्म हो रहा है और कभी भी कहा जा रहा है 20 से 25 मिनट लगेंगे जब अतीक अहमद और अशरफ यहाँ पहुंचेंगे। तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये बैरिकेड्स बकायदा लगाए गए हैं। अब यहाँ पर ये मुख्य गेट है जहाँ पर बैरिकेड लगाए गए, उसके पीछे जो गेट है वहां पर भी मुस्तैदी नजर आ रही है। 3 गेट्स हैं ऑल इन टोटल, जिसमें ज्यादा मुस्तैदी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर भारी पुलिस की तैनाती आप लगातार देख रहे हैं जी। Yeah, so this was a reporter from Republic Bharat getting us a live updates from the court in Prayagraj where Atiq Ahmad is going to be brought. He is going to be kept in Naini jail. He will be produced in court in tomorrow is what we are getting to know. समय कम हो गया और कभी भी पहुंच सकता है अतीक अहमद और काफिला। देखिए हम तस्वीरें दिखाएं, यहाँ पर जो भारी तैनाती आप पुलिस कर्मियों की देख रहे हैं, पीएससी के जवानों की तैनाती। नरुदेश्वर जरा ये बैरिकेड्स की तस्वीरें दिखाइए। बैरिकेड्स अभी यहाँ पर लाए गए हैं। ये देखिए बैरिकेड्स अब बाकायदा लगाए जा रहे हैं। जो ये हलचल आप बढ़ती देख रहे हैं ये बता रहा है कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अतीक पहुंच सकता है जल्द से जल्द और ये मुख्य द्वार है। नरुदेश्वर जरा मुख्य द्वार की तस्वीरें दिखाइए और बंदी गृह का वो जो दरवाजा है वो यहाँ से करीब है, ऐसे में यहाँ से ले जाया जा सकता है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये जो तार है ये वज्रवाहन के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। ऐसे में जो पीछे वाला गेट है, अगर नरुदेश्वर वो तस्वीरें आप दिखा पाए, अगर पीछे वाले गेट की वहां पर कोई मीडिया नहीं है, हालांकि पुलिसकर्मी जरूर है, मीडिया की वहां एंट्री नहीं है, वो गेट भी हो सकता है संभवतः जिससे ले जाया जाए। इसके अलावा एक और गेट है जहां अनामिका सिंह हमारी सहयोगी मौजूद है। रिपब्लिक भारत अलग अलग एंगल से आपको तस्वीरें दिखा रहा है नैनी सेंट्रल जेल की, जहां कभी भी ले आया जा सकता है। बैरिकेड्स जो है पूरी तरह से यहाँ पर लगा दिए गए हैं और मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। और आईजी जेल अंदर मौजूद है, एसीपी अंदर मौजूद है, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं हिमानी वो अंदर मौजूद है। उनकी मौजूदगी बकायदा उन्होंने सेल को जांचा है, परखा है। Getting these live pictures from Prayagraj where Atiq Ahmad will be brought in a short while from now. He was moved from the Sabarmati jail this morning. A UP police team took his custody on a Sunday. He was this gangster turned politician mafia Atiq Ahmad was lodged in Ahmedabad's Sabarmati jail. He set off by road for Prayagraj this morning. He will be produced in court on Tuesday where he will in fact face verdict in the 2007 Umesh Pal kidnapping and a criminal conspiracy case. The investigation against Atiq Ahmad gathered pace a couple of weeks back after the murder of a key witness in the Umesh Pal after the murder of the key witness. And we saw this repeated crackdown on the aides of Mafia Don Atiq Ahmad as well in the last few weeks, where Yogi Adityanath very clearly said that they have zero tolerance towards Mafia Raj. We saw the properties of Atiq Ahmad's aides being brought down to rubble, being razed with bulldozers. There were multiple raids that took place, and now Atiq Ahmad himself has been brought
from Sabarmati to Prayagraj. In fact, there was a fear among his family members as well as he was being shifted from Sabarmati to Prayagraj. Now he has reached Prayagraj. He is in the Prayagraj district. He will be brought to the jail in a short while from now. He will be produced in court tomorrow, where he will face charges. Yeah, we're cutting across to a reporter from Republic Bharat. है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है ये तस्वीर क्योंकि जो अतीक है वो आज लौट रहा है प्रयागराज की नैनी जेल। वैसे तो उसके क्राइम का साम्राज्य रहा है ये नैनी जेल, इसके आसपास के इलाके, क्योंकि कहा यह जाता है कि अतीक जेल के अंदर रहे या जेल के बाहर रहे उसके लिए बात बराबर है, क्योंकि जेल के बाहर तो आज़ाद होता है वो, लेकिन जेल के अंदर रह करके साम्राज्य चलाता था वो। लेकिन इस बार चूंकि जब अतीक की वापसी हो रही है प्रयागराज के जेल में, तो इस बार हालात बदले हुए हैं अतीक के लिए। और देखिए यहाँ पे जो तस्वीरें हैं नैनी जेल में, इस नैनी जेल का इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है, क्योंकि बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स भी यहाँ पे रखे जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है माफिया की, गुंडे माफिया की, जिसके आतंक ने प्रयागराज के कई लोगों की न सिर्फ जिंदगी छीन ली, बल्कि 250 से ज्यादा मुकदमे अतीक पर ऑलरेडी चल रहे हैं, जिसमें दंगा भड़काने, जिसमें हत्या, एक्सटॉर्शन केस से लेकर के तमाम जो मुकदमे इस पर चल रहे, 17 से ज्यादा तो हत्या के मुकदमे हैं बहरहाल। अब लेकिन इस बार ऐसा मौका है जब अतीक को सिर्फ एक केस में, उपेश पाल के अपहरण केस में सजा सुनाने के लिए गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया है। कल 11 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन इसी बीच बड़ी अपडेट यहाँ पर यह भी है कि यूपी पुलिस की ओर से भी अनुमति मांगी गई है कोर्ट से कि वो उमेश पाल के मर्डर केस में अतीक से पूछताछ करना चाहते हैं। पुलिस के पास इसके लिए प्रॉपर एविडेंस है, उस एविडेंस को आधार बना करके कोर्ट से अनुमति मांगी गई है। और जिस तरीके से जो एविडेंस पुलिस के पास है, फिर चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो, फिर चाहे वो बाकी अन्य कॉल डिटेल्स हो, उसको आधार बना करके पुलिस से जो है रिमांड मांगी जा रही है पुलिस की ओर से कोर्ट से, तो ऐसी गुंजाइश लगती है कि रिमांड मिल भी जाएगी। अब रिमांड के बाद क्या होगा ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि रिमांड कितने दिन की मिलती है, पूछताछ में अतीक क्या कुछ उगलता है। अब इस बीच चूंकि अतीक ने सुप्रीम कोर्ट में भी ऑलरेडी एक एप्लीकेशन लगा रखी है यूपीना ट्रांसफर करने को लेकर के, जिसको लेकर सुनवाई कल ही होनी है। तो इन सबके बीच जो कानूनी दाव पेच है, इसमें अतीक कैसे बच निकलता है या नहीं निकल पाता है, या कस्टडी मिल जाती है, पुलिस को रिमांड मिल जाती है पूछताछ करने के लिए, अब ये बहुत सारी बातें हैं जो अभी भी कल साफ हो पाएंगी, कल दोपहर के बाद साफ हो पाएंगी। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कल 11 बजे की वो पेशी जो प्रयागराज में होने वाली है एमपीएमएलए कोर्ट में, जहाँ पे अतीक को न सिर्फ पेश होना है बल्कि सजा सुनाई जानी है। एक तरफ वो परिवार है जो अतीक की बहन जो लगातार ये कह रही कि एनकाउंटर हो सकता है उसके भाई का, दूसरी ओर एक ऐसा परिवार है जो सालों से अतीक के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, और कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे थे लगातार उसके परिवार के लोग। तो वो यहाँ पर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आज ही हमने उमेश पाल की माँ से बात की, उमेश पाल की पत्नी से बात की। So live visuals there from, and live report in fact, from Prayagraj, from outside the Naini jail, where Ateek Ahmed will be taken. We're now cutting across to more breaking news coming in, this time from the state of Karnataka.